Hello and welcome everyone. We're starting off with the part 3 of our course. We are continuing on chapter motion of class ninth. This is part 3. Alright, in this video we will be discussing about types of motion. That is, we will discuss something about uniform motion and something about non-uniform motion. What are these terms, what do they mean, and why are they called so? All right, next we will discuss about acceleration. What is acceleration? After that we will discuss about kinematic equations. Of course, they're related to acceleration, and we will derive their expressions by analytical methods. Of course, we will make one more video on this, that is derivation of kinematic equations through graphical methods. We will represent motion on graph, and of course we will read something about circular and uniform circular motion in the next and the final part. All right, so this is all we need to discuss in this video. This is part 3, and let's start. So before this, you have already read about velocity, average velocity, average speed, distance, displacement. You've covered all those terms. All right, so you have a basic idea, that is what is velocity. This is the rate of change of displacement with respect to time. Similarly, what is speed? This is rate of change of distance with respect to time. So the topic we are discussing is based on change of speed, whether the speed changes with time or not. So in case where speed remains constant, the motion of an object is said to be uniform. If speed is equal to constant का मतलब क्या होता है बेटा? Constant means fixed. If an object, if this ball is traveling with a speed of 2 meter per second, and it's doing so as the time goes on, then its speed is said to be constant. कि ये हर सेकंड में 2 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, then this its speed is constant. Clear? So such type of motion, this is called as uniform motion. And the other motion, that is, if speed is not constant, then the motion is said to be non-uniform motion. And motion is said to be non-uniform motion. So we'll go this by definition के साथ ही जाते हैं. ठीक है, आपकी NCERT में भी सेम यही डेफिनेशन मिलेगा आपको. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. If an object covers equal distances in equal interval of time, the motion is called as uniform motion. Such motion is called as uniform motion. This is definition of uniform motion. See, I can explain it to you in a straight line motion. क्या होगा? ये एक straight line motion है. This is position A, this is position B. This is यहाँ से शुरू करना है, यहाँ जाना है इस बंदे को. ठीक है, तो इसके बीच में कई शहर आते हैं. सपोज करो दिस इज़ अ सिटी K, this is a city L, this is a city M. All right, so all these cities are situated at an equal distance. सभी की सभी जो शहर हैं वो बराबर डिस्टेंस पर हैं. सपोज करो दिस इज़ ऑल्सो 40 किलोमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 40 किलोमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 40 किलोमीटर. क्लियर? दिस इज़ ऑल्सो 40 किलोमीटर. सी, सपोज करो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट चला 3 बजे, यहाँ पर पहुँचता है 4 बजे, यहाँ पर पहुँचता है 5 बजे, यहाँ पर पहुँचेगा 6 बजे,
यहाँ पर पहुँचता है 7 बजे। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज यहाँ पर भी 1 घंटा लगा इसको, यहाँ पर भी 1 घंटा लगा, यहाँ पर भी 1 घंटा, यहाँ पर भी 1 घंटा। तो इसने बराबर डिस्टेंस कवर करा बराबर टाइम में। देन दिस टाइप ऑफ मोशन दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड opposite to this, if an object covers unequal distances in equal interval of time, if an object covers unequal distances in equal interval of time, that is called as non-uniform motion. See, we won't discuss much about this over here, and we'll start off with our next topic, that is acceleration. We are starting with acceleration. What is acceleration? बेटा सबने सुना है गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, पैर दबाते हैं एकदम से गाड़ी भागती है, यस और नो। सो उसी एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से वो वर्ड बना है एक्सेलरेटर। दैट इज समथिंग दैट इंक्रीजेज और एक्सेलरेट्स अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटर। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? बेसिकली सबसे पहले सीखो, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम ए से। इसके ऊपर भी एरो आता है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड विल गो बाय डेफिनेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन सर दिस इज rate of change of velocity. This is rate of change of velocity. जब भी हम बात करते हैं रेट की, इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मोशन इज कॉल्ड टाइम बाउंड। ओके, चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज दिस चेंज? चेंज का मतलब जब भी हम फिजिक्स में बात करेंगे, दिस इज final quantity minus initial quantity. In case of acceleration we are talking about velocity. So change is final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity. And we're talking about time, that is rate, then this is divided by time. This is divided by time. Clear? So this is acceleration. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बना दिया acceleration का। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? v से। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, एंड वी डिवाइड इट विद टाइम। सो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, इट ऑल्सो गिव्स अस अ वेलोसिटी। रिजल्टेंट क्या होगी? एक वेलोसिटी ही तो आएगी, यस और नो, divided by time. So we can also find out its SI unit from here. Velocity का unit क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, एंड अगेन डिवाइडेड बाय टाइम। सो टाइम 2 बार डिवाइड में आ गया, देन दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द SI unit of acceleration. Clear? So also velocity, this is a vector quantity. So vector quantity, time, this is a scalar quantity. So vector divided by scalar, this is resultant quantity will be a vector quantity. So this is all about acceleration. Clear? So now we are going to talk about, again we are going to talk about uniform and non-uniform motion. Uniform और non-uniform motion के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे थोड़ा सा. Uniform motion and this is our non-uniform motion. This is a pretext to our next topic, kinematical equation. अच्छा, kinetic equation से पहले थोड़ा सा kinematics के बारे में भी बता देता हूँ. Kinematics is a branch of physics which deals with objects in motion. Which deals with objects in motion. Basically mechanics की branch है, ठीक है? Which फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स. और काइनेमेटिक्स में भी किसके बारे में पढ़ते हैं हम? वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. हम ये नहीं जानते कि वो बॉडी मूव क्यों कर रही है, क्या फोर्स उसके ऊपर लग रही है. हम फोर्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो वो ब्रांच बन जाती है कौन सी? काइनेमेटिक्स. ऑलराइट. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बताया आपको स्पीड क्या है? कांस्टेंट. क्या है? स्पीड इज इक्वल टू के. कांस्टेंट है.
तो स्पीड कांस्टेंट हो गई तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हो गया, ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक ही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं निकालना आएगा। जब भी हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहीं पर क्या है, डिफरेंस है वेलोसिटी में, यहीं पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, काइनेमेटिक्स की, कि यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होता है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन। ऑलराइट, सो बेसिकली काइनेमेटिक्स में अभी आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, आई कांट ड्रॉ कार, लेट्स ड्रॉ अ बॉल। ये एक बॉल है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी मूविंग, ये ऑलरेडी मोशन में है। इट इज, सपोज करो इट इज़ मूविंग विद स्पीड, दिस इज़ कॉल्ड एज यू, इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, ठीक है, और मूव करती हुई इसको एक्सेलरेशन मिला, ठीक है, ये बॉल आ गई यहाँ पर। नाउ इट्स वेलोसिटी इज़ v, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। वाई वेलोसिटी v, क्योंकि इसको एक्सेलरेशन मिला और t टाइम के अंदर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, s डिस्प्लेसमेंट कवर करा। तो यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, काइनेमेटिक्स की। सी व्हाई डू वी टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स, और वी आर डीलिंग विद ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड वी आर नॉट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो तीन काइनेमेटिक इक्वेशन होती हैं, सिंपल रिलेशन होते हैं इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपस में, जिनको एक इक्वेशन से, इक्वल के साइन से डिफरेंशिएट करके लिखा जाता है। व्हाट आर दीज, दीज आर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and v square minus u square is equal to 2as. Clear? These are three equations that we talk about. Let's derive them through this, and we are doing this with analytical method. That is, we are not using any graph. We are using simple definitions of these terms and we will use them and mathematical operations to derive these expressions. All right. सो हमने बात करी एक बॉल की, दिस बॉल इज़ मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, इसको एक्सेलरेशन मिला, ये बॉल इस पोजीशन पर आ गई v, ये a पोजीशन पर थी पहले, b पोजीशन पर आ गई, a पोजीशन से b पोजीशन पर आने में इसको टाइम लगा t, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करा s और इसका एक्सेलरेशन था a। क्लियर, दिस इज़ ऑल वी नो, ठीक है। But we also know, now we will write by definition of acceleration. Acceleration की हमें definition पता है, what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity, that is final velocity minus initial velocity divided by time. So simple एक operation होगा, this t is in divide, इसको इधर ले जाओ, ये multiply हो गया, ठीक है, this is a divided by 1. This big equation becomes a multiplied by t is equal to v minus u. v इधर u इधर माइनस का है, u को इधर ले आओ, u becomes positive, u plus a t is equal to v. इसको रीअरेंज करके लिख दो, v is equal to u plus a t. This is our first equation. Clear? Next, for the next equation हम उसको derive कैसे करेंगे? Now we will talk about velocity. So by definition of velocity, velocity का definition क्या होता है, rate of change of displacement. Velocity is rate of change of displacement. Displacement कितना करा, s, with respect to time. Time is t. All right. So यहाँ से बेसिकली अब हम बात करें, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर बात आ गई वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो जी हमारे पास दो है, एक v भी है और एक u भी है, तो कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सी लें। तो कहता है जी दोनों का एवरेज ले लो। एवरेज वेलोसिटी का आपको इससे पहले वीडियो में फॉर्मूला बताया, एवरेज वेलोसिटी इज़ सम ऑफ वेलोसिटीज़। सम ऑफ वेलोसिटीज़ मतलब कौन सी वेलोसिटीज़, कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर, u प्लस v डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज़, दैट इज़ नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ टू वेलोसिटीज़, सो u प्लस v डिवाइडेड बाय 2।
तो कहता है जी आप दो वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लो, दिस इज़ v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी से आपकी दोनों इक्वेशन डिराइव हो जाएंगी। इसमें दोनों इक्वेशन कैसे डिराइव होंगी, एक बार इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करना होगा किसका, v का, और एक बार इक्वेशन में वैल्यू पुट करना होगा किसका, t का। सी दोनों इक्वेशन में डिराइव करके दिखाता हूँ इसी इक्वेशन से आपको। ओके, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से v किसके बराबर है, दिस v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, v की जगह पर मैं लिख देता हूँ, अच्छा आई एम यूजिंग द सेम पेन ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, s इज इक्वल टू v की जगह पर मैंने लिख दिया u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर, u प्लस यू कितना हो गया, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 2ut, इसको सेपरेट कर दो, डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी, दिस बिकम्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आई एम सॉरी कुडंट सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, this equation becomes s is equal to ut plus half at square. So this is your equation number 2, s is equal to ut plus half at square. Now we'll put the same in the same formula, we'll put the value of t। कहते जी t की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, t की वैल्यू निकालेंगे हम बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो सिंपल करो, t को इधर ले जाओ, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ t। क्लियर, तो उसी इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर t की जगह हम क्या पुट करेंगे, t की जगह हम पुट करेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ऑलराइट, सो दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2as इधर आ गया, दिस इज 2as एंड वी आर लेफ्ट विद v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू। तो ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जिसको आपने मैथ्स में पढ़ रखा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, this becomes 2as is equal to v square minus u square। Clear, this is the expression for the third kinematic equation, that is v square minus u square is equal to 2as। अच्छा, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस ऑल्सो। एक कार है विच इज़ मूविंग विद अ स्पीड, a car is moving with a speed of suppose 8 meter per second। The driver accelerates the car to 16 meter per seconds in 4 seconds। Clear, find the acceleration। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको बोला है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डायग्रामेटिकली भी आपको समझा सकते हैं। दिस इज़ अ कार, क्लियर, दिस वाज मूविंग विद 8 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया इस कार को। नाउ दिस इज़ मूविंग विद 16 मीटर पर सेकेंड, और उसने टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड्स में ये कार की स्पीड 8 मीटर से 16 मीटर पर सेकेंड पर चली गई। कहता है जी एक्सेलरेशन बताओ, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज़ v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पर v कितना है, दिस इज 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज़
4, so this becomes 8 divided by 4, this becomes 2 meter per second square. अच्छा यूनिट का बहुत ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, क्लियर. सो दिस इज एक्सेलरेशन. अच्छा कहता है कि जी अभी एक्सेलरेशन आपने बढ़ाई है, ये एक्सेलरेशन कैसी आई है, पॉजिटिव. कहता है जी ड्राइवर स्पीड बढ़ाता थोड़ी है, ड्राइवर तो स्पीड घटा भी सकता है. तो एक घटाने का भी केस देख लेते हैं, यही इसी को कंसिडर करते हैं. कहते जी ड्राइवर की स्पीड थी जी 16 मीटर पर सेकेंड कार की, उसको कम कर दिया उसने, ब्रेक लगाया उसने, अप्लाइड ब्रेक, तो ब्रेक्स अप्लाई करें और कार की स्पीड जो है वो घट के आ गई 8 मीटर पर सेकेंड. 4 सेकेंड में ही आ गई. कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स में. कहता है जी नाउ फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. तो विल यूज़ द सेम फार्मूला हेयर ऑल्सो. इनिशियल स्पीड वाज, फाइनल स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड, initial speed is 16 meter per second, time taken is 4 seconds. This becomes minus 8 meter per second divided by 4 second. This becomes minus 2 meter per second square. What does this minus sign shows? This minus sign shows that acceleration is negative. Acceleration is negative. और negative acceleration का दूसरा नाम होता है बेटा retardation. This is called as retardation. This is retardation. So this is again a case. Okay, we'll complete this lesson in the next video, so stay tuned for that. Thank you for watching. Thank you everyone.